When we attend weddings, we are often swept up in a romance, the couple exchanging vows, wishing them a lifetime of happiness, teasing them a little about what's to come next, and witnessing their journey start together. It's all so dreamy. But behind every love story is always a unique tale about how the couple came together. Sometimes it's through friends, family, colleague, social media. And sometimes it's through matchmakers, professional matchmakers, people who dedicate themselves into bringing hearts and families together. Now, the process may not always be simple, but let me tell you, it's quite a journey that these matchmakers make to help people find the one. On that note, welcome to Wetcast, everyone. I'm your host, Geetika Mishra, and in this series, we'll pull back the curtain on the quest for true love. We'll explore modern marriage expectations. We'll talk about romance, the highs and lows of finding the perfect partner, how the world of matchmaking has evolved, and a lot more with the superb folks, the experts from Make My Lagan, who are truly the masters in the art and science of matchmaking. I have with me the brilliant folks from Make My Lagan today, Mr. Sachin Chawla and Mrs. Shalu Chawla. Hi, how are you doing, guys? I'm very good. Good morning. Great. Okay, then please tell me. I was talking about matchmaking, and of course, it's such a important thing and crucial when two people are coming together. So, how do you people, go about it? Like, walk me through the process a little bit. See, in this process, we wanted to understand our client better. That is the first basic thing when we start in-depth, conversation with the client. You can say a deep consulting with the client. Right. So that's how, we understand him better. We wanted to know him needs, wants, and the goals, what he wanted to achieve, from this matchmaking process. And after understanding all the details, from the client, so we know him better than a profile, basically what he wanted to create. Okay. That's Open how. discussions are more important into this. The client will interact with us openly and वो हमें बता सकते हैं उनको क्या उनकी real personality क्या है. अच्छा. So that we can understand them. तभी हम उनकी requirement के accordingly we can work with them. Okay, so you directly speak to the prospective bride and groom and not the families. No. Is that what you're saying? No. We wanted to talk to everyone in a family. Yes. Okay. Basically, it's an individual need as well as a family requirement. Right. We have to maintain the balance between the children and the family. Okay. And how do you, take into account the personal preferences of the boy and girl? Like what they're looking into their partner. वो कौन से stage में आता है? वो इनिशियल कॉन्वर्जेशन में ही आता है, क्योंकि जब हम किसी के साथ प्रोफाइल की डिस्कशन करते हैं, मतलब जब हमारे को वो अपनी रिक्वायरमेंट समझाता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल एक अपने लाइफ पार्टनर में ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो उनकी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, वो जैसे पर्सनालिटी हो गई, किसी की एजुकेशन हो गई, किसी की हाइट हो गई, किसी का अपना एक्सपोजर हो गया, तो के बारे में हम डिटेल में समझते हैं. और फिर जब हम अरेंज मैरिज के सेटअप पर होते हैं तो फैमिली की भी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, क्योंकि हम लोग शादी तो तभी कराते हैं जब कल्चर और वैल्यूज़ दोनों परिवारों का अच्छे से मैच होता है. Right. तो आज की डेट में हम लोगों को क्या करना होता है, आज हम जिसकी शादी करा रहे हैं तो वो एक मॉडर्न वैल्यूज़ और मॉडर्न टाइम्स के साथ है, बट रिश्ते तो वहीं बनेंगे ना जहाँ पुराने कल्चर और पुराने सिस्टम्स और वैल्यू सिस्टम्स मैच होंगे दोनों फैमिलीज़ के. So we have to balance between the today's generation and as well as the tradition and the values and the culture of both the families. Of course, I think that is so important, and which is also something that I wanted to understand from the both of you, that how do you navigate the traditional practices जो होते थे पहले अरेंज मैरिजेस में, योर गोत्र, योर कुंडली, दिस एंड दैट, with the modern requirements. Like how do you bring these things together? Because when you're saying wants and requirements, जैसे आपने बोला किसी की height होती है, किसी का ये वो, so how do you bring these two things together?
हर इंडिविजुअल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है आई थिंक, बिकॉज हमारे इस मेट्रीमोनियल प्रोसेस में जितने भी बच्चे हमारे पास सजेस्टेड हैं, एवरी वन हैज़ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. वी हैव टू हैव ओपन डिस्कशन अबाउट व्हाट इज़ देयर नीड. और आजकल ये बहुत कंसेप्ट है कि बच्चे बोलते हैं कि हमें अरेंज मैरिज कंसेप्ट में नहीं जाना, बट नाउ अरेंज मैरिजेज आर नॉट अरेंज मैरिजेज जो पहले होती थी. पहले क्या होता था कि घर के बड़े दादाजी पापा जाके रिश्ता पक्का करके आ जाते थे. आपको मौका ही नहीं मिलता था ग्रूम से मिलने का या ब्राइड से मिलने का. आई थिंक आप उसको मैरिज के डे पे ही देखते थे. बट नाउ द टाइमिंग्स एंड थिंग्स हैव चेंज. नाउ द पेरेंट्स आर ओपन माइंडेड और वो अपने बच्चे को जो उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग एक राइट मैच चुनने का ऑफर देते हैं और बच्चे भी उसको पूरा टाइम लेते हैं. Right. So this is where the evolution has come, that arranged marriages are actually sort of love marriages now. अब जैसे होता क्या है कि पहले जब पेरेंट्स रिश्ता पक्का करके आ जाते थे तो कहीं ना कहीं बॉय एंड गर्ल की अपनी डिज़ायर्स कुछ पर्सनल होती थी, वो रह जाती थी. वो फैमिली प्रेशर में आकर रिश्ता करते थे और उसके अंदर टॉलरेंस पावर भी बड़ी ज़्यादा होती थी, एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी और वो रिश्ते निभते थे, निभा जाते थे, बट बहुत सारी अपनी प्रेफरेंसेस को दबा करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेशंस को दबा करके. पर अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, अब पेरेंट्स भी उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो मॉडर्न टाइम के हैं. उन्होंने अपना एक टेन्योर पूरा देख लिया कि शादी में वो समझ गए हैं कि कि एग्जैक्टली क्या ज़रूरत है, शादी हम करते क्यों हैं, किस लिए. हाँ, पर उससे पहले वहाँ तक लाने के लिए वो पीछे एक बहुत बड़ा काम होता है कि उस प्रोफाइल को सोर्स करना, उस प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से उनके पास लेकर जाना कि ये जो प्रेफरेंसेस उन्होंने हमें बताई हैं अपनी, क्या ये उसके आसपास भी हैं. क्योंकि जब हम किसी के साथ बैठ करके उनकी पूरी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, जहाँ पर उनकी when we create profile, then there are a lot of questions. In depth we go inside and then we understand their requirements और उसके बाद ही हम ये प्रोफाइल को उनके पास लेकर जाते हैं. तो ये पेरेंट्स अपने लेवल पे ये सब चीज़ों को देख लेते हैं, बट बियॉन्ड दैट इसके पीछे का काम बहुत होता है. बिकॉज हम पहले उनकी फैमिली से मिले होते हैं, उनके हाउस विजिट्स हमने किए होते हैं, जहाँ पर हम उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल्स को काफ़ी इवेलुएट करते हैं. और 95% प्रोफाइल्स हमारे विजिटेड होते हैं जो हम सामने वाले को सजेस्ट करते हैं. तो उसके पीछे बहुत काम होता है. कई बार हमें उन्हें काउंसलिंग भी करना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, क्योंकि पिक्चर्स से शादी नहीं होती है और आपको अपने जो इनसाइट है वो हमेशा देने ही होते हैं सामने वाले को. तब जा कर के वो मीटिंग पर आते हैं और फिर वहाँ से एक अलग काम शुरू होता है. That is actually very extensive and also very true, क्योंकि पिक्चर देख के तो शादी होती नहीं है. होता यही है कि बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग. कई बार लोगों को होता है वो दे डोंट लुक फॉर देमसेल्व्स. एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसी लुक्स चाहिए, तो सामने वाले को भी चाहिए होती है. तो समटाइम्स वी हैव टू बी वेरी लाइक, ऑफ कोर्स वी ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर एक्सपेक्टेशंस, जो भी उनका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे थिंग्स विल मैच. दैट फिजिकल अपीयरेंस इज ऑल्सो देयर, फाइनेंशियल background is also there. Can you, I don't know whether I'm making sense in asking this or not, can you list out things for me on the basis of how you match profiles? I mean, अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं, किस बेसिस पे मैच करते हैं? लिस्ट नहीं बन सकती है. लिस्ट बन सकती है क्या? Are you married? No, I'm not. So what are you looking in a boy? You tell me, I'll answer you. What am I looking in a boy? First of all, I'm not looking for a boy right now. But if I'd be looking for a boy, so my community would be important for me. I'm from Bihar, तो मेरा कल्चर बहुत अलग है, तो मेरे कल्चर के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए. And that's actually very different. I mean, even from Bihar, I'm from Mithila region. So हमारे यहाँ पे चीज़ें बहुत ट्रेडिशनली होती हैं. So I would love if someone is able to understand and respect all of those things about me. बाकी तो चीज़ें सेकेंड है ना, मतलब फैमिली, this, that. आई थिंक मेंटल कंपैटिबिलिटी, मुझे लगता है मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है. आप मुझे बताइए, मुझे लिस्ट दे दीजिए प्लीज़. तो आई पर्सनली फील कि मेंटल कंपैटिबिलिटी should be the prime factor of marriage, because if you both are not mentally compatible, then marriage is not compatible, I can say. Because you are good, I am good, but we both
आर नॉट गुड फॉर ईच अदर. इट कैन बी पॉसिबल ना, दो अच्छे इंसान एक दूसरे के लिए भी अच्छे हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. वो लोग बोलते हैं ना वाइब मैच करनी चाहिए बिकॉज आपका जो लाइफ को जीने का थॉट प्रोसेस है और जो आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस है, यू बोथ शुड रिस्पेक्ट ईच अदर. तो हमें एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो और मेंटल कंपैटिबल अगर आप दोनों हैं, आपका लाइफ को जीने का नज़रिया और आपके पार्टनर का सेम है, आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं in personal growth and as well as into professional growth, you should respect your partner of any profession that person is carrying. So basically you are not giving me a list. There is no list because जितने लोग हैं हर एक की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. एंड सबसे ज़रूरी है कि मैरिज में आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, और इसलिए वो क्या करते हैं अपने माइंड में एक बना के रखते हैं और उन्हें लगता है कि हमें इसी चीज़ से हैप्पीनेस मिलेगी. इसलिए वो क्या करते हैं, जब हम लोग प्रोफाइल्स देते हैं तो वो पेपर पे वर्क करते हैं. तो जब तक आप किसी पर्सन से मिलेंगे नहीं, समटाइम्स यू फील कि मुझे सबसे सुंदर ऐसी वाली लुक्स चाहिए, बट अगर आपको ऐसी लुक्स मिल गई, आप उसके साथ बैठे, और समटाइम्स वी फील हम किसी के साथ बैठते हैं तो हम घंटों बातें करते रहते हैं, और कई बार किसी के साथ क्या होता है आप 5 मिनट बैठ के यू फील लाइक नहीं यार मैं इसके साथ कॉप अप नहीं कर सकता. तो आप कैसे जज कर लोगे? बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि आपके स्कूल कॉलेज में जो सबसे सुंदर हो वही आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो. आपकी कहाँ मेंटल कंपैटिबिलिटी मैच होगी, तो वो सब चीज़ें मिलके ही जजमेंट होती है. So basically we are clear on the part that since arranged marriages are not the same anymore, कोई लोग मिले कितनी भी बार मिले और ज़रूरी नहीं है जिससे वो बहुत बार मिले उनसे शादी भी कर लें. So this is the beauty of the arranged marriage. Yeah. देखिए हमारे प्लेटफॉर्म में वही लोग आते हैं जो अपने लिए रिश्ता नहीं ढूंढ पाए, या जिनके माँ बाप अरेंज मैरिजेस के थ्रू रिश्ता अपने बच्चों का ढूंढ रहे हैं. सो ऐसा भी नहीं होता कि वो ढूंढ नहीं पाए. हाँ नहीं, मतलब देखिए अब स्कूल कॉलेज में जाते हैं, सेम जगह पे काम करते हैं, कोई नहीं मिलता तो नहीं मिला ना, तो ऑनलाइन साइट्स पे जाने का टाइम नहीं है, या वहाँ पर भी. और आजकल तो कई बार ही मुझे ऐसा लगता है लोगों के पास वक्त की भी बहुत कमी है. People don't really have the time to just go out. But definitely we are playing active role in that for them, to helping them to find the life partner. हमारा जो इनिशियल प्रोसेस होता है टू अंडरस्टैंड द फैमिली एंड टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन, टू लुक फॉर देयर लाइफस्टाइल, तो हम उनका ये टाइम सेव करते हैं. बिकॉज अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हो, आपको नहीं पता वो पर्सन किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्या उसका लाइफस्टाइल है, क्या उसके टेस्ट है. तो जो बेसिक पैरामीटर्स है, हम लोग जो हमारी जो टीम है, वी हैव ए स्पेसिफिक टीम फॉर दैट, जिसके लिए हम लोगों के घर में जाते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, उसका टेस्ट देखते हैं, हाउ द कैरी देयर लाइफ, और वो कैसे जीना चाहते हैं. तो हमारा पूरा एक एक पूरा हम रेडी करते हैं उसका जो है क्वेश्चनर, एक उसका पूरा ब्रीफ इंट्रो हमारा बनता है कि क्या इसकी पर्सनैलिटी है और क्या पर्सनैलिटी इसके साथ मैच करेगी. राइट. जिसके अकॉर्डिंगली आप उनको मैच करते हैं. ओके, टेल मी वन थिंग. आप लोग इतने लोगों से मिलते हैं, सो आई एम श्योर पीपल कम अप विथ बिजार रिक्वायरमेंट्स एवरी नाउ एंड देन. वुड यू माइंड शेयरिंग कि अगर किसी ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही बोल दिया हो कि नहीं मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, कि यार उसको ना चाइनीज जरूर बनाना आता हो, फूड का शौकीन हो, फूडी हो, रोटी बनाए या ना बनाए, बट कभी एक हफ्ते में एक बार चाइनीज जरूर बना के खिला दे. तो सम पीपल लव म्यूजिक, तो उनको लगता है कि उसको म्यूजिक से भी प्यार होना चाहिए. ठीक है, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है, बट आई पर्सनली फील कि अगर आप दो अपोजिट्स होंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, उसके जो शौक हैं और जो आपके हैं, आप दोनों को एंजॉय करेंगे. अब जैसे if you talk about the people like above 50, they wanted to get married, so they come up with a very different requirement. Okay. So if you talk about a male, like he's looking like maybe a 15 years younger woman again into her life. Okay. And if the lady is like around 50 or 50, so she is looking and expecting a very fit gentleman in her life, maybe a 5 year younger, or maybe a person at the age of 55 look like a 55 or a 45. People are very health conscious nowadays. Yes, but you know what is my personal takeaway from what you just said? I am so glad that 50-year-olds are actually coming to you and looking to find a match. Yeah, we have. Time has that is changed. actually so nice to the hear. best part is that children are also with their parents nowadays.
विद दिस। अभी कोविड में क्या हुआ कि किसी की मदर नहीं रही, किसी के फादर नहीं रहे, तो उनके बच्चे आते थे कि भाई अब तो हम भी मैरिजेबल एज के लिए, हमारी शादी हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, तो पेरेंट्स अकेले रह जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात थी कि भाई कि मेरे फादर के लिए भी देखो, मेरे लिए भी देखो, मेरी मदर के लिए भी देखो, मेरे लिए भी देखो। सो वो फैमिलीज में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई और बड़ी अच्छी बात है। और बच्चे आपके पास आए हैं स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए, दैट इज सो स्वीट एक्चुअली। So best part is that, you know, understanding within the families on these issues are open and good and healthy. And this also says a lot about how our society has evolved in terms of acceptance, which is really great. Now, speaking of society, आजकल the only talk when it comes to wedding is the Ambani wedding that has recently happened. I don't know how many more celebrations in London, in Europe, in Australia, New Zealand. But anyway, do you think that, you know, in the recent past, after this wedding or even ever since the celebrations began, it has influenced your clients in any particular way, you know, in terms of what they're looking at, or maybe when you're dealing with like your premium clients, has it influenced them? Yes, influence तो होता ही है, because now on every social media you will see Ambani wedding only. अब देखिए, अगर हम अंबानी फैमिली की बात करते हैं, वो एक बहुत जानी पहचानी और पुरानी फैमिलीज़ में से और बहुत ही वेल एस्टैब्लिश फैमिलीज़ में से है एशिया की। वर्ल्ड वाइड एक्चुअली पीपल नो देम। पर सबसे अच्छी बात उसमें ये लगी कि उन्होंने हमारे इंडियन ट्रेडिशन को पूरी सभ्यता के साथ और पूरे वैल्यूज़ के साथ अपनी सारी वेडिंग्स को पूरा किया और बहुत पूरे कल्चर को फॉलो किया, पूरे ट्रेडिशन को फॉलो किया और बहुत ही अच्छे से किया। तो अब जितने भी हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, तो एक वो बेंचमार्क सेट हो जाता है कि आप जितनी मर्ज़ी बड़ी ग्रैंड वेडिंग करें, आप जितने मर्ज़ी मॉडर्न हो जाए, बट आप अपने ट्रेडिशन और अपने वैल्यूज़ को ना भूलें उसके अंदर। तो वो घर के छोटे से बच्चे से लेकर के जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और अपनी फैमिली से सबसे मिलवाया, तो वो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से सबको समझ पा रहे थे, देख पा रहे थे। और जब अनंत अंबानी इज़ द नेम ऑफ द बॉय, नहीं अनंत अंबानी, तो उन्होंने जब अपने फादर के बारे में हिंदी में बहुत अच्छी एक स्पीच दी सबके सामने, तो वो भी हमारे इंडियन कल्चर को टुवर्ड्स पेरेंट्स के रिस्पेक्ट के और मतलब वो एक दर्शा रहा था कि हम चाहे जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, जितने मर्जी बड़े लोग हो जाए, पर हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी सभ्यता है, हम उसको ना भूलें। So has this influenced your premium clientele into wanting a girl or a boy who is much more closer to their culture or something like that? कल्चर का तो है, बट आजकल जो मैरिजेस है ना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ में भी हो गई हैं। एंड हमारे दिल्ली में ये कल्चर बहुत अडॉप्टेड है, आई विल से शो ऑफ का, क्योंकि पीपल आर लाइक जब वो कई बार मैरिज प्रॉस्पेक्ट के लिए आते हैं, इसीलिए आई थिंक डिवोर्स रेशो इज़ इंक्रीजिंग। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनको कैसी गर्ल चाहिए या कैसा बॉय चाहिए। समटाइम्स फैमिली कम्स एंड दे सेड कि वो शादी एक इस वेन्यू में करें, शादी का बजट शुड बी लाइक दिस। तो दैट्स नॉट द बेस ऑफ ए मैरिज, दैट्स ए 3 hours शो कि हमें सोसाइटी को दिखाना है। दे सेड कि हमें कुछ नहीं चाहिए। समटाइम्स पीपल कम एंड से कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस गर्ल शुड बी फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, शी शुड बी फ्रॉम वेरी गुड स्कूल, शी शुड स्टे इन वेरी गुड लोकेलिटी और शी शुड बी लाइक प्रिटी। हमें कुछ चाहिए नहीं। तो इसमें आपको क्या नहीं चाहिए? तो समटाइम्स आई फील कि एक बच्चे की अच्छी एजुकेशन कहाँ से आएगी, एक अच्छी एरिया में घर कहाँ से आएगा? एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी ना, और ऊपर से आप कह रहे हो हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर रिस्पेक्ट की, आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपका टेस्ट है, आपको उसके अकॉर्डिंग मैच चाहिए। आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट कि उसकी ये नीड है, बट उसके साथ साथ जो हमारा मेन प्राइम फोकस है मैरिज के ऊपर कि जो बॉय एंड गर्ल की कंपैटिबिलिटी है, दैट शुड ऑल्सो बी देयर। समटाइम्स फैमिली के प्रेशर में आके बच्चे डिसीजन ले लेते हैं, बाद में अगर वो दोनों ही खुश नहीं है, आपने कितनी लेविश वेडिंग कर ली, आपने कितनी सुंदर बहू ले आए या सुंदर, बट इफ़ दे बोथ आर नॉट हैप्पी, तो मैरिज इज़ नॉट ए हैप्पी मैरिज ना। तो हमें जो फर्स्ट मेन प्राइमर जो थिंग्स है कि दोनों बच्चों की कंपैटिबिलिटी और उसका मेन फोकस मतलब करना चाहिए।
So basically, I think there's a very thin line between a marriage and a wedding. The wedding is just one day, and then you eventually have the marriage where you have to spend your entire life with the partners, right? So ये बहुत blurry है and people confuse कि अच्छा हाँ शादी तो वो तो बस एक दिन है, यही कह रहे हो ना आप, वो तो 3 घंटे का शो है eventually. Now, you know, I am glad that, you know, Sachin ji said कि इन चीज़ों के बारे में हम openly बात नहीं करते हैं. So why do you think that we don't, as a society, discuss matchmaking and, you know, people don't openly talk about that, yes, I am employing the services of a matchmaker to find myself a partner. And, you know, I am asking you this because recently we all saw this show on Netflix on matchmaking, and it did give us some sort of insight in the world of matchmaking, but it was not enough. And by the end of it, everyone had their own conclusions, and that too both negative and positive. Negatives bhi the, positives bhi the, and it did sort of open a discussion that yes, it is important, and it is not bad if you know want to employ someone else's services to help you find yourself the one, but then it again faded away after the show ended. So why this? Why are, you know, as a मतलब ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हम क्यों नहीं बात करते हैं चीज़ों के बारे में? क्या गलत है मैच मेकर के पास जाना? देखिए, पहले लोग बहुत हेसिटेट करते थे कि मैच मेकिंग के थ्रू हम रिश्ता क्यों देखें, क्या हम कैपेबल नहीं है, क्योंकि बच्चों को ये लगता था, फैमिलीज को ये लगता था कि हमें उनके सामने ओपन होना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा. और अब कोई हमारे पास आता है कि यार हमें हमारे जैसे लोग बताओ, तो भाई कैसे तुम्हारे जैसे, कैसे तुम कैसे हो, हमें कैसे समझ में आएगा ना. आप किसी डॉक्टर के पास गए और अगर आप उसको अपने बारे में बताओगे ही नहीं कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा फेस कर रहा हूँ, तो वो आपको कैसे गाइड करेगा, कैसे ट्रीट करेगा, कैसे आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, आपको कोई बीपी है, शुगर है, आप अपने बारे में पूरा बताओगे तभी तो वो आपको ट्रीटमेंट देगा ना. So you shouldn't lie to a doctor, and you also shouldn't lie to a matchmaker. So matchmaking is a very noble profession. It's a very respectable profession, but it is just a mindset of an every individual. बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हमारे लिए ढूंढो, शादी हो जाती है, फिर वो कहते हैं प्लीज़ कीप इट साइलेंट कि हम नहीं बताना चाहते कि हमने मैच मेकिंग के थ्रू रिश्ता किया. मैच, यू नो, ऑन अ पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म वी हैव टेकन सर्विसेज, यू नो, टू फाइंड अ मैच फॉर आवर बॉय और अ गर्ल. और कई बार लोग चाहते हैं और बताते हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है. तो जो आपने मुझसे पूछा अभी नेटफ्लिक्स पे आपने कुछ देखा, तो डेफिनेटली उसमें बड़े सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, पर वो बिल्कुल भी इतना इनफ नहीं था. दैट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक थिंग. इट इज़ जस्ट अ आई ओपनर थोड़ा सा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप रिश्तों को देख सकते हैं. बट उसके पीछे का बहुत बड़ा काम है और उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेजेस हैं जो दिए जा सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली लोगों को बहुत हेल्प करेगा अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए सही डिसीजंस लेने में. ओपन डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द फैमिलीज, बिकॉज जब वो हमारे पास आएंगे एंड इफ दे आर क्लियर व्हाट दे नीड, अगर हम उनको जितना समझ पाएंगे, दैट्स वाई वी मीट पर्सनली विद द फैमिलीज, विद द चिल्ड्रन, हम उनसे बार बार मिलते हैं सो दैट टू अंडरस्टैंड देम बेटर. अगर जितना हम उनको समझ पाएंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाता है. समटाइम्स कई बार पर्सन आते हैं, हम उनको पहली बारी में समझ जाते हैं और हमें लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट मैच, हम उनको फर्स्ट रिश्ता ही दिखाते हैं, क्लिक हो जाता है. तो समटाइम्स फैमिली सेज आपने करा ही क्या है, तो दैट बिकॉज उन लोगों को समझ नहीं आती है कि जो हमारी लाइफ का, लाइक वी आर इनटू दिस फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स, तो जो हमारा 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हमने आपको जाना समझा, हम इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों को, तो आपके साथ बैठ के हम आपको इतना समझ पाए कि हमने आपको 10 नहीं दिए, हमने आपको 1 पिक करके दिया, सॉल्यूशन दिया, हमने आपका काम करा दिया. अगर आपको फर्स्ट ही अच्छा मिल गया तो यू शुड लाइक बी हैप्पी कि आपको प्रीमियम सर्विसेज मिले, आपने सीधा ट्रैवल किया, कि आपने वीआईपी ट्रैवल किया, तो आप खुश होते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ. आप सीधा बिजनेस क्लास में बैठे और 7 स्टार में उतर गए. दैट यू मस्ट, यू नो, थिंक इट लाइक दैट वे. यू हैव टेकन अ प्रीमियम सर्विसेज. बट यू नो, आर पीपल फिनिकी कि कुछ लोग अगर ऐसे होते हैं क्या कि
अब उन्हें ज़बरदस्ती का 50 प्रोफाइल देखनी ही है। लोग क्या करते हैं, अपने आसपास की बातें सुन के ना अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं कि मैट्रिमोनियल से है, ऐसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हम नेगेटिव एक्सपेक्ट में बहुत चले जाते हैं और वो राइट डिसीजन नहीं ले पाते। उनके फर्स्ट आता है तो दे फील, समटाइम्स आई ऑल्सो फील कि मैट्रिमोनियल का ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है बिकॉज यू आर लोडेड विथ सो मैनी प्रोफाइल्स। आपके पास प्रोफाइल आ रहे होते हैं, पीपल विल से मेरे पास तो इसका रिश्ता है। अरे भैया, उसने आपको अप्रोच नहीं करा, आपको किसी मैच मेकर ने अगर उसका बायोडाटा भेज दिया तो इट डजेंट मीन कि उस फैमिली ने आपको रिश्ता भेजा है। मैच मेकर नो कि मेरा प्रोफाइल गया है और लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे को इससे बेटर मिल सकता है, मुझे इससे बेटर, ऐसे बेटर के चक्कर में, और वो अपना बिकॉज देयर इज एन एंड। नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे क्या होता है कि आज की डेट में तो देखो मैच मेकिंग एजेंसीज जो मतलब एक प्रोफेशनल मैट्रिमोनियल कंपनी है, वो आपको बहुत सारे चॉइसेस देती है, ऑप्शंस देती है कि आप उसको देखो करो। बट हम ये कहते हैं कि ये ऑप्शन इसलिए हैं कि आप एक बेहतर अपने लिए जीवन साथी चुन पाओ अपनी पसंद के हिसाब से। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दो और ज़्यादा एक्सप्लोर करते करते यू एंड अप गेटिंग नथिंग। Speaking to both of you all, I realized that actually, the family might just come and say कि हाँ तुमने तो किया है, but then you're the people who are making that match eventually. Sometimes people say कि personalized matchmaking is very expensive और premium matchmaking is very expensive. जब आप शादी कर रहे होते हैं, you are spending so much money, और उसमें जब आपको डेकोर कराना होता है तो आप पर्सन को बोलते हैं डेकोर शुड बी गुड, 2 लाख फालतू लगे, आई डोंट केयर, बिकॉज आपको दुनिया को दिखाना है। और जहाँ पे आपके बच्चे की पर्सनल का सवाल है, जो लाइफ टाइम आपको रिश्ता दे रहा है, तो हाउ दैट मैच मेकिंग इज एक्सपेंसिव। वो इंस्टाग्राम पे नहीं देख पा रहे हैं ना लोग, डेकोर इंस्टाग्राम पे देख ले रहे हैं गाइस। तो इसी तरह से जो हम लोगों को जो एफर्ट्स लगते हैं उनको प्रोफाइल सजेस्ट करने में, फैमिली से मिलने में, उनके घर विजिट्स करके प्रॉपर इनसाइट और लाने के लिए, और एक रिलेशनशिप मैनेजर या जो उनको सर्विसेज दे रही है और कई सारे ऑप्शंस सजेस्ट कर रही है, तो उसके पीछे का जो काम है वो बहुत बड़ा है। एंड इट टेक्स एक मैच मेकिंग का अगर प्रोसेस शुरू होता है, इट टेक्स मंथ्स। मतलब उस लेवल तक पहले तो आप रिश्ते दिखा रहे हो, फिर उसके बाद कहीं कुछ समझ में आता है जहाँ उनकी पतरी, हाइट, एजुकेशन, लोकेशन, स्किन कलर सब कुछ मैच हो जाता है, एंड दे वांट टू मीट द पर्सन। और फिर जब हम उनको कनेक्ट कराते हैं, और उसके बाद वो भी कई बार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पूरा प्रोसेस ले जाता है, बिकॉज वी हैव टू कोऑर्डिनेट अ लॉट एंड देन इट हैपेंस। There are so many people that motivate us to do better work, because some people appreciate long time, जिनके बच्चों के हमने रिश्ते करा दिए from last 10 years, they are still in touch. Sometimes उनकी शादी वाले दिन उनके पेरेंट्स का फ़ोन आता है and they say thank you, आपने मेरे बच्चे का रिश्ता कराया था, आज उसकी एनिवर्सरी का क्रेडिट आपको भी है। हमारा इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, वी आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पेरेंट्स, लॉट ऑफ चिल्ड्रंस कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और अगर वो भी अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, किसी के भी साथ हो पूरी तरह से, तो हम इवेंचुअली अपने आप को भी आगे बढ़ा पाएंगे और बहुत सारी फैमिलीज के लिए मदद कर पाएंगे। वी आर गिविंग समथिंग बैक टू सोसाइटी एज वेल। यस, bringing hearts together. Lovely, you guys. Now, because you people have said so many things, I just want to say that I'm really glad that we are doing Wetcast, because now I am even more excited to know about other stories in the upcoming episodes. So I actually could record all of them today and I could keep speaking to you, but I am glad we are doing this. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I am also thrilled and very excited to share all the insights in this fascinating matchmaking world. So this was just a sneak peek into the world of matchmaking, and of course there's a lot to discuss and lots to know, so we'll be back soon. You are watching Make My Lagans Wetcast. Stay tuned.